Clear and audible? Yes, Yes. Ashish. Yes. Thank you. So today we are on the fifth letter to the church, and this is the church at Sardis. पांचवा जो पत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिखा और वो सार्डिस की कलीसिया को लिखा गया है. Want to share an experience with you. This goes back to the year 1994. 1994 की बात है when I finished my class 10th and I had to take admission for class 11th and 12th. And I was in a CBSC school, Cathedral School in Ganj. मैंने अपना 10वीं ख़त्म किया, CBSC बोर्ड से था और अब 11th में एडमिशन लेना था. And at that time we didn't have all these so many CBSC schools. And I was not sure what to do. मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं. And then we had this Lucknow Christian College. It is there today also. And I was guided to study in Lucknow Christian College. क्योंकि हम लालबाग में ही थे और हमारे बहुत पास में ही गोलागंज में क्रिश्चियन कॉलेज है, तो मुझसे कहा गया कि वहाँ जाके पढ़िए. एंड बिकॉज यू नो it is a college for Christians, for minority, and many people, almost all Christian boys of Lucknow and around Lucknow, have studied there. My father has studied there. My uncles have studied there. कितने लोगों ने वहाँ पे पढ़ाई करी है लखनऊ के और आस-पास के लोगों ने. And I've seen that at that time. I'd seen from outside, big buildings, halls, ground, and बड़ा बड़ा उसकी बिल्डिंग इमारतें हैं लाल रंग की और बड़े हॉल्स हैं, ग्राउंड्स हैं. सो दैट प्रेस्टीज, दैट ग्लोरी, उसको देख के बड़ा अंदर से हुआ कि हाँ, दिस इज द प्लेस टू स्टडी, यहीं पढ़ना चाहिए. सो आई गॉट एडमिशन, आराम से एडमिशन मिल गया. एंड देन द क्लासेस स्टार्टेड. आई बिगैन टू गो एंड आई वाज इन फॉर अ वेरी रूट शॉक फॉर द नेक्स्ट 2 years एक्चुअली. और जो 2 साल वहाँ पे 11वीं 12वीं के बीते, वो बहुत बड़ा झटका मुझे लगा, क्योंकि जो मुझे बताया गया था उसके इतिहास के बारे में और उस कॉलेज के बारे में, वो मुझे नहीं मिला. So this is a first-hand experience. It's not what I read, but what I experienced. Classes बहुत कम लगते नहीं थे. We used to go, but the teachers would not take the classes. It's a fact. And I was so disappointed. मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से दुख हुआ कि इतने अच्छे स्कूल से, कैथीड्रल से निकल के ऐसी जगह पे गए. एंड मैं पढ़ना चाहता था और क्लासेस होते नहीं थे. Then eventually we made a small group and we used to meet in my house in Noor Manzil, in our apartment. And there about 15-20 boys used to come, and every day we used to sit and study together. In spite of having admission in such a big prestigious college, हमें यहाँ ऐसे पढ़ना पड़ता था. And so what was looking so promising from the outside, बाहर से देखने में जो उसकी प्रतिष्ठा थी, ग्लोरी थी, what it looked from outside, inside it was not at all like that. अंदर से वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था. And I did my BCom also from there. The next 3 years, it was the same. जो 3 साल मैंने BCom के भी किए, not that all the teachers were bad. No, there were some very good teachers, but overall it was a disappointing experience. कुछ वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर पूरे तौर से देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुखद अनुभव हुआ उस जगह पढ़ने में. Now the case of Sardis is the same. जो सार्डिस की कलीसिया के बारे में आज हमने जो पढ़ा गया और जो हम देखेंगे, वो उससे मिलता जुलता माहौल है और मिलता जुलता दोनों बातें हैं. इट्स अ सैड लेटर. द लेटर टू सार्डिस इज अ सैड लेटर. देयर इज नथिंग टू कमेंट अबाउट दिस चर्च. यीशु मसीह ने इस कलीसिया के बारे में कुछ भी तारीफ नहीं करी. देयर इज नथिंग टू कमेंट. देयर इज नो प्रेज. कोई प्रशंसा की बात नहीं है इस कलीसिया के बारे में. देयर इज नथिंग नोटवर्दी अबाउट दिस चर्च. और इस कलीसिया के बारे में कोई ऐसी काबिल तारीफ बात ही नहीं है जो इस कलीसिया के बारे में करी जाए.
और यीशु मसीह ने भी नहीं करी. Jesus doesn't have any words of no commendation, praise for this church. And Jesus has a terrible accusation against this church. जो इन पर इल्जाम लगाया गया है वो बहुत ही संगीन इल्जाम है, बहुत ही भयानक इल्जाम है. It's terrible. What is the accusation? You have a reputation of being alive, but you are spiritually dead. And we can see this in verse 1 itself. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. हिंदी में पढ़ दीजिए इसको. जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ. मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो है लेकिन असली में तू मरा हुआ है. So it appears that you are alive, but I know the truth. You are dead. ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि तुम जीवित हो, लेकिन सच ये है कि तुम मरे हुए हो, तुम मृत्यु हो. And there is such a great contrast in the past glory and the present decay of this church. ना जो पहले के समय में जो इस कलीसिया की, इस जगह की जो ख्याति थी, और आज जो इस कलीसिया की दशा है, जो सड़ गया है ये कलीसिया, उसमें कितना एक विपरीत दशा हमें दिखती है. एंड सार्डिस वाज अ सिटी ऑफ डीजेनरेशन. जो सार्डिस जो शहर था वो ऐसा शहर था जिसका पतन हो रहा था धीरे धीरे, जो धीरे धीरे सड़ रहा था. It was degenerating. Now, little bit about Sardis. It has a very long history, but we can't cover all that. A little bit about the city of Sardis. थोड़ा सा इस Sardis शहर के बारे में. 700 years before this letter was written, Sardis was one of the greatest cities in the world. 700 साल पहले जब ये लिखा गया, ये पत्री, सार्डिस जो था वो दुनिया की एक बहुत ही माना हुआ शहर था. This wealthy city was on a mountain and also had spread to the valley once the mountains were full. ये पहाड़ के ऊपर एक शहर था, और जब पहाड़ पर जगह भर गई तो नीचे वादियों में भी ये बसता था. So from a military point of view it was very safe. इस पर जल्दी जो है कोई हमला नहीं कर सकता था, बहुत सुरक्षित जगह थी ये. It was a center of woolen trade. यहाँ पे ऊन का व्यापार बहुत अच्छा चलता था. And if you dig into the history, you can Google it up. It's a very long and rich history. बहुत लंबा इतिहास है इनका, और बहुत ही एक घना इनका इतिहास है. By the time the Romans came and John wrote this letter, Sardis was still wealthy but was degenerating. जब रोमियो यहाँ पे आ गए और जब ये पत्री लिखी जा रही थी, जब यूहन्ना लिख रहा था, उस समय तक धनी तो वो थे, लेकिन धीरे धीरे उनका पतन शुरू हो चुका था. And in such an environment, the church too had lost its vitality and was spiritually dead. और ऐसे माहौल में, ऐसे शहर में ये जो कलीसिया थी वो भी अपने महत्व को खो चुकी थी. जो उसका महत्व था उसको वो खो चुकी थी, और वो जो कलीसिया थी वो भी एक प्रकार से मृत हो चुकी थी. And so we need to ask the question and reflect. एक सवाल जो हमें यहाँ करना चाहिए, जो आना चाहिए हमारे दिमाग में, और जिस पर हमें विचार करना चाहिए, वो ये: हाउ डज अ चर्च डाई स्पिरिचुअली? कोई भी कलीसिया जो है वो मर कैसे सकती है? बिकॉज जीसस सेड यू आर डेड. कैसे कोई कलीसिया जो है वो मर सकती है, आत्मिक रूप से मर सकती है? एंड इज दिस हैपनिंग इन टुडेज टाइम? क्या ये बात उसी वक्त के लिए कही गई है, या आज भी ऐसा हो रहा है? यू नो, इट इज प्रिटी मच लाइक द अर्बन चर्चेस ऑफ टुडे. आज जो आपको शहर के बहुत सी कलीसियाएं जो मिलेंगी, उनमें आपको कुछ ऐसा ही सा माहौल
बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा. You know, you have beautiful, well painted buildings. बाहर से आपको बहुत अच्छा रंगाई हुई, पुताई हुई, पेंटेड आपको इमारतें मिलेंगी. there's a decent gentry, बहुत अच्छे ढंग के लोग वहाँ पे आते हैं, अच्छे से तैयार होके नो अंदर जाते हैं, बैठते हैं. लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत से आपको वहाँ पे कार्यक्रम मिलेंगे. लॉट्स ऑफ डिनर्स, मील्स, जंबल सेल्स, यूथ रिट्रीट्स, सेमिनार्स, यूथ के लिए प्रोग्राम, इसके लिए प्रोग्राम, बहुत से सेमिनार, ये सब आपको मिलेगा. येट दे कुड बी स्पिरिचुअली डेड, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आत्मिक रूप से एक कलीसिया जो है वो मृत है. एंड सार्डिस वाज अ लाइफलेस चर्च. सार्डिस के बारे में जो हम जानते हैं वो ये है, जैसा लिखा हुआ है कि उसमें जीवन नहीं था, उस कलीसिया में जीवन नहीं था. द चर्च इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनी हेरेसी, इट इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, देयर इज नो जेजेबियल इन द चर्च. यू नो, कोई यहाँ पर झूठी शिक्षा नहीं है, का प्रचार नहीं हो रहा है. यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है चर्च में. बट दैट्स अ गुड साइन, इजंट इट? If there is no controversy, if there is no heresy, then everything is okay. सब चीज बहुत अच्छी चल रही है. And yes, in a way it is good. If there is no heresy, if there is no controversy, everybody is doing fine. In one way it is good. एक तरह से तो ये अच्छा है. But this church was so lifeless that its lifelessness was enough to render it useless. Its lifelessness was enough to render it useless. ये जो कलीसिया थी वो इतनी ज्यादा, इसमें कुछ भी नहीं होता था कि उसकी वजह से ये लोग बेकार हो चुके थे. इतनी ज्यादा शांति थी इस कलीसिया में कि सब लोग वहां के बेकार हो चुके थे. दैट पीपल वर रेंडर्ड यूजलेस. You know, as I was reading about this subject, I came across a good piece, and uh, I read that a church often goes through 4 stages of life. मैं पढ़ रहा था इस विषय के बारे में, और मैंने ये देखा और मैं आपके साथ ये बांटा. I would like to share with you quickly. A church often goes through 4 stages of life. 4 चरणों में से कोई भी कलीसिया जो है वो गुजर सकती है, गुजरती है. 4 stages. You know, first of all, there is what is referred to as the movement stage. You begin with as a movement. तो जो पहला जो चरण है वहां पे एक गति मिलती है, एक आंदोलन की तरह होता है. इट्स अ मूवमेंट. लाइक द किसान मूवमेंट इज गोइंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा. किसानों का आंदोलन चल रहा है. इट्स अ मूवमेंट, एंड पीपल आर ज्वाइनिंग, पीपल आर ऑल चार्ज्ड अप, पीपल आर रेडी फॉर एवरीथिंग. सो यू बिगिन एज अ मूवमेंट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ चर्च बिगिंस एज अ मूवमेंट? जब एक आंदोलन की तरह, एक गति की तरह एक कलीसिया शुरू होती है, तो क्या होता है? दे स्टार्ट एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी ड्रिवन बिलीवर्स. बहुत विश्वासी लोग होते हैं और परिचित लोग होते हैं जो साथ में मिलते हैं. दे आर फोकस्ड ऑन रीचिंग द कम्युनिटी, और जो उनकी जो लोग हैं उन तक वो पहुंचना चाहते हैं. उनका पूरा ध्यान केंद्रित होता है. इन दिस स्टेज नियरली 100% ऑफ द मेंबरशिप इज थॉरली कमिटेड. जब आप इस चरण पे होते हैं, इस स्थान पर होते हैं, तो करीब करीब 100% लोग, पूरे लोग जो हैं वो बहुत कमिटेड होते हैं, बहुत समर्पित होते हैं टू द चर्च एंड द मिशन. कलीसिया के प्रति, और जो कलीसिया के जो मिशन है उसके प्रति बहुत पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं. दे ऑल कम टू संडे स्कूल, दे ऑल कम टू वर्शिप, दे ऑल कम टू द मिड वीक एक्टिविटीज. तो चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो हफ्ते के बीच की कोई कार्यक्रम हो, सब उसमें आते हैं. Everyone goes to all the ministry meetings. जितने भी मीटिंग्स होती हैं सब लोग उसमें जाते हैं. And whether there's Bible study, whether there's prayer, and the ministry of the church, and the church is on the minds of every believer in this stage. तो जो भी कलीसिया में हो रहा है, चाहे बाइबल स्टडी हो रही है, प्रेयर हो रही है, कोई भी चीज हो रही है कलीसिया से संबंधित, सब लोग वहां पर
हमेशा उपस्थित रहते हैं. That's the first stage. That's the movement stage. And then comes a stage, the second stage, that is called the magnificence stage. जो दूसरा जो चरण आता है, स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं ये शान, मैग्निफिसेंस. ये हमारे चर्च की शान है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन द मैग्निफिसेंस स्टेज, कि हमारे शान की बात है कि सो द चर्च हैज रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेंडेंस. अब यहाँ पर मैक्सिमम, अधिकतर लोग कलीसिया में आते हैं. एंड क्योंकि वो इतना बढ़ चुका है, इतने ढेर लोग हैं, सो नाउ दे कैन डू थिंग्स व्हिच दे कुड हैव ओनली ड्रीम्ड ऑफ अर्लियर. अब हम इतने सारे काम कर सकते हैं मिलके, जो पहले हम नहीं कर पाते, पहले हम सिर्फ सोचते थे. नो, बट हाउ एवर द कमिटमेंट लेवल ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रुप बिगेन्स टू डिप स्लोली. लेकिन अब इस जगह पर आके क्या होता है कि जो लोग, जो उनका समर्पण था, वो धीमे धीमे कम होने लगता है. इट कैन डिप बिटवीन 50 to 70%. 50 से 70% तक लोगों का जो समर्पण है, जो समर्पण की आत्मा थी, नो दैट हाई स्पिरिट्स, इट बिगिंस टू स्लोली डिप. दे स्टिल हैव द विजन एंड ड्रीम. जो उनका दर्शन था, जो उन्होंने सोचा था, वो अभी भी है, बट द इंटेंसिटी हैज डिमिनिश्ड. लेकिन उस करने की जो जो जोश था, जो पैशन था, दैट हैज स्लोली बिगिंस टू डिप. This is what may happen in the second stage of magnificence. जो दूसरा जो स्टेज है, जो शान, ये उसका आपको देखने को मिलेगा. The third stage, and this writer calls it the monument stage. जो तीसरा चरण है, उसको इस लेखक ने कहा है कि ये मॉन्यूमेंट स्टेज है या स्मारक. जो चर्च है वो अब एक स्मारक बन गया है. It has become a monument. Now Lucknow is a city of monuments. We know what a monument is. लखनऊ जो है वो स्मारकों का शहर है, और हम जानते हैं कि स्मारक का मतलब क्या होता है. So in this church, in this stage, the members still do things to increase the growth, but they begin to talk less about the future than they do about the past. अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेज में क्या होता है कि अभी भी लोग जो हैं, मेंबर्स बात करते हैं कि चर्च जो है वो हमें आगे बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, लेकिन अब वो आने वाले समय की बात, भविष्य की बात कम करते हैं, लेकिन जो हो चुका है वो भूतकाल की बात ज्यादा करते हैं. पहले क्या होता था, पहले ऐसा था, अरे वो दिन ऐसे थे जब ऐसे होता था, एक जमाना था जब ऐसे होता था, अब तो देखिए पता नहीं. This is that stage when people talk about like this, those were the days, when this used to happen, and then we see the old pictures, oh, it used to be like this, and now let's see what happens. This is that stage, the monument stage. And people do things primarily because that's the way they've always done, and the level of commitment can dip between 10 to 30%. और अब लोग जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना है, हर हफ्ते ऐसे ही होता है, हर महीने ऐसे ही होता है. सो दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग इट. एंड द कमिटमेंट, जो लोगों का समर्पण होना है, वो 10 से लेकर के 30% के बीच में गिर जाता है. दिस इज द थर्ड स्टेज. एंड फाइनली देयर इज अ फोर्थ स्टेज, एंड द राइटर कॉल्स इट, दिस इज द स्टेज ऑफ द मसोलियम स्टेज और द डेड चर्च स्टेज, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में समाधि या मकबरा. अब मकबरे भी बहुत हैं लखनऊ में, तो अब जो कलीसिया है वो इस चरण में या तो समाधि बन चुका है या एक मकबरा बन चुका है. प्रभु यीशु मसीह का समाधि या मकबरा, मे बी लाइक अ टूम्ब. इट हैज बिकम लाइक अ टूम्ब. तो ये जो चरण आएगा, ये इट्स द स्टेज ऑफ, इट्स अ डेड स्टेज. यहाँ पे चर्च जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से मर चुका है. सो मोस्ट ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैव आइदर ड्रिफ्टेड अवे और डाइड. जो जिन्होंने शुरू किया था लोग, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है या वो इधर उधर जा चुके हैं. अटेंडेंस लेवल कैन वेरी फ्रॉम 10 to 50%. 10 से 50% लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं. कभी आते हैं, कभी नहीं जाते हैं. कोई नया आ गया वहाँ पे तो उसमें ज़रा सा वो चौंक जाते हैं, पता नहीं कौन आया है, क्या है. सो दिस इज दैट लास्ट स्टेज of the church.
So the question is, how can we know if the congregation of individuals, believers, has entered the mausoleum stage? Because that is the most alarming stage, the fourth stage. कैसे पता चलेगा कि कोई भी कलीसिया ये चौथे वाले स्टेज में पहुंच चुकी है, जो कि वो समाधि वाली स्टेज है, द डेड state of the church? How to find that out? First of all, if you notice that there is religion without Christianity, अगर हम ये देखें कि धर्म की बातें बहुत हो रही हैं लेकिन मसीहत की बातें बहुत कम हो गई हैं, everything has become a ritual, everything has to be done because it is in the book, क्योंकि ऐसा ही करना है, इससे हम दाएं बाएं नहीं कर सकते, लेकिन मसीहत की बातें बहुत कम होती हैं. So people look religious, people sound religious, people keep all the laws. हम जो हमारा दिखावा है वो बहुत धार्मिक दिखता है, जो हमारे मुंह से बातें निकलती हैं बहुत धार्मिक बातें निकलती हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वाली बातें सब निकलती हैं. वी कीप ऑल द लॉज, जो जो कहा गया है, लेंट ऑब्जर्व करना है, ये करना है, वो सब हम करते हैं. येट इट में ऑल बी अ शो. लेकिन फिर भी हो सकता है ये सब बातें जो हैं वो दिखाने वाली बातें हो, विथ नो जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट. लेकिन ये सब करने के साथ भी हो सकता है कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. सो वी आर लिविंग अ रिलीजियस लाइफ विदाउट क्रिश्चियनिटी, विदाउट द स्पार्क ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइव्स. तो हो सकता है कि अगर ऐसा है तो ये एक चिन्ह है कि कोई भी कलीसिया ऐसे वाले स्टेज में पहुंच चुकी है जहां पे हम धार्मिक दिखते हैं, हम धार्मिक बातें करते हैं, हम सारे नियमों का, सारे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में कोई परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह का हमारे हृदय में नहीं है. Another way to find out is, or another symptom is, that of a dying or a dead church is the absence of struggles. There is no struggle. It's only a symptom. अगर आपको ऐसा भी दिखे कि एक कलीसिया है जहां पे कोई समस्या ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं है, so that can also be a symptom of a dead or a dying church. So a church has become complacent. एक कलीसिया जो है वो आराम तलब बन चुकी है, मतलब जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, जो है सब ठीक है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, ठीक है, और ना कोई कुछ सुनना चाहता है ना कोई कुछ कहना चाहता है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो. दैट इज कंप्लेसेंसी. एंड ऑब्वियसली इन सच अ सिचुएशन देयर आर नो स्ट्रगल्स. अगर हर चीज वैसी ही चल रही है तो वहां पे कोई संघर्ष नहीं होगा. नो पीपल आर इजी गोइंग विद डॉक्ट्रिन्स. जो भी आ रहा है, कुछ भी प्रचार कर रहा है, ठीक है, हम सब सुन रहे हैं, ठीक है, और हम लोग सब सर हिला रहे हैं अपना. यू नो, पीपल आर नॉट बॉदर्ड विथ व्हाट इज गोइंग अराउंड. हमारे कलीसिया में क्या चल रहा है, कलीसिया के आसपास चारों ओर क्या चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सब ठीक है. देयर इज नो सोशल एक्शन. अगर हम अपने समाज में, अपने शहर में, आस पड़ोस में कोई समस्या देख रहे हैं, कोई बड़ी बात चल रही है, तो उसके लिए भी हमें अंदर से कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. देयर इज नो स्टैंड. किसी चीज में हमें कोई स्टैंड लेना है, हमें किसी बात में खड़ा होना है, अपनी आवाज को उठाना है, तो ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा. सो दैट इज अनदर सिम्टम ऑफ अ चर्च दैट इज डाइंग और अ चर्च दैट इज डेड. अगर ये बात आपको दिखती है तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कलीसिया है जो मर गई है या धीरे धीरे अपनी मौत के नजदीक जा रही है. सी, बिकॉज स्ट्रगल्स हेल्प टू ग्रो स्पिरिचुअली. जब कलीसिया कष्टों में से गुजरती है तब उससे आत्मिक रूप से कलीसिया आगे बढ़ती है. इफ देयर इज नो चैलेंज, if there is no danger, if there is no persecution, then it's a sign. Now this morning only, and even before this, we have just shared that
वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। आज ही ये बात करी गई है और इससे पहले भी वो प्रार्थना में करी गई थी कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नो। सो फॉर 20 years plus, we have been so thankful to God for the places of worship that we got. हम प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं कि जो जो हमें आराधना करने के स्थान मिले, सारे स्थानों का हम धन्यवाद करते हैं। हमें ओएम बेस में उनका हॉल मिला, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी गॉट द ओएम बेस, वी आर सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। देन वी गॉट द फिलिप्सेस होम फॉर सो मेनी ईयर्स, वी आर सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। हमें फिलिप्स परिवार का घर मिला और कितने सालों तक हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एंड देन वी गॉट द प्रेजेंट सैंक्चुरी दैट वी हैव, and we are so grateful to God for that, right in the heart of the town in महानगर, कि एकदम शहर के बीच में महानगर में हमें एक इतनी सुंदर जगह मिली आराधना करने की। बट नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद आगे क्या? एंड सो as the thought was shared that we do want to have another place, a place where we move out into a new location, you know, reaching out to new people. The idea is not the building, the idea is how to reach. इसका ये मतलब नहीं कि हमको एक बहुत बड़ा सा भवन चाहिए जो बहुत सुंदर दिखे, सब लोग उसकी तारीफ करें, people should praise this building, oh this is the new building, you know, with all. That's not the point. The point is we need more access points to reach out to the community, कि हम जब नए स्थान पर जाएंगे तो नए लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ के जो लोग जो हैं वो हमारे उपस्थिति से उनको फायदा मिले. People should benefit with our presence in a different place. Now that will be a challenge. That is all dangerous also. आज का जो समय है उसके हिसाब से थोड़ा खतरा भी है. अभी तो हम नजर में नहीं आते हैं, हम तो अपार्टमेंट में हैं. No, we are not even allowed to put a cross outside. हम अपने कलीसिया के बाहर अपना क्रॉस भी नहीं लगा सकते, हम नाम भी नहीं लिख सकते हैं. All it says is tulip apartments, that's all. लेकिन जब बाहर अगर जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से तो बिल्डिंग बनेगी जो चर्च की तरह दिखेगी, वहाँ क्रॉस लगेगी, कुछ लिखा होगा. That's dangerous. That will be challenging. It can invite persecution. But that is something, we are looking forward to. So, struggles and challenges, if they are there, it shows the church is alive. It shows the church is moving forward. A third symptom is this, that a church may be so much focused on the past. If any church is focused too much on the past leadership, past membership, past activities, and very less focused on the future, then it's a sign of a dead church. Now, there's nothing wrong in reviewing the past. We all learn from the past. I'm a history teacher also. I like to study the past. But how much can we focus on the past? So any church that is relying too much on the past, focusing too much on the past, पहले हम ये करते थे, पहले इतने लोग थे, पहले ऐसे होता था, पहले वैसे होता था, but we're not focused on the future, then it is also a sign that it is either a dead church or it is moving towards its death. क्योंकि ध्यान सामने नहीं पीछे है. So one symptom is that the church may be following a religion without Christianity. एक ऐसा पता नहीं किस प्रकार के धर्म को हम के पीछे चल रहे हैं लेकिन उसमें मसीहत नहीं है. Another symptom can be that there are no struggles, no challenges, no persecution. कोई संघर्ष नहीं है. We have become complacent. A third symptom could be that we are focusing on the past. बहुत ज़्यादा हम लोग जो समय बीत चुका है उस पे हमारा ध्यान लगा. These are only symptoms. These are only symptoms, and we can think about it in our own context where we stand. Jesus said that I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. यीशु मसीह ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है मैं जानता हूँ. I know what you're doing, and you have a reputation of being alive. बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जीवित हो, औरों को दिख रहा है कि तुम जीवित हो, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में अखबार में लिख रहे हैं, आपकी बड़ी फेसबुक पे तारीफ है,
हर जगह आपकी तारीफ है. पीपल यू नो यूट्यूब पे बड़ी तारीफ है. आई नो योर डीड्स. जीसस सेज आई नो दैट यू आर डेड. So we can fool, a church can fool the people around, but the church cannot fool Jesus. यीशु मसीह को सब पता है कौन कैसे क्या करता है. So this was happening in the Sardis church. ये सार्डिस की कलीसिया में हो रहा था. Then Jesus gives 3 imperatives in verse 3. 3 अनिवार्य बातें यीशु मसीह हमें तीसरे पद में बताते हैं. Remember therefore what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief and you will not know at what time I will come to you. हिंदी में पढ़ लीजिए. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा. यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा. So if there are 3 words we can remember over here: remember, obey and repent. 3 imperatives that Jesus gives: remember, therefore, another word is obey, and the third word is repent. Remember all that the Lord has taught us. Remember what the word of God says. In verse 2, Jesus says, wake up. In verse 2, Jesus says, wake up. Wake up and remember, recall what I have taught you. याद करो वो सब बातें जो मैंने सिखाई हैं. Jesus says in verse 2, wake up, strengthen what remains and is about to die. Strengthen what remains and is about to die. Jesus says there is hope. जो कुछ भी समय बाकी रह गया है, जो कुछ भी रिसोर्सेस हमारे पास रह गए हैं, जो भी अनुसंधान हमारे पास रह गए हैं, स्रोते रह गए हैं, उनको मजबूत करना है और आगे बढ़ना है. Because that is also about to die, Jesus says. If we will not wake up, if we will not do what the Lord has said, then what remains will also die. जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं. And so verse 3, remember what you have received and heard, obey it and repent. जो कुछ भी तुम्हें बताया गया है, सिखाया गया है, उसको याद करो, उसका पालन करो, obey. जो कहा गया है उसको करो. And whenever the Lord Jesus says obey, it just means to obey. There are no conditions. Obey means to obey. अगर परमेश्वर ने कहा है तो हम करेंगे, उसके बाद क्या होता है वो परमेश्वर के हाथों में. Sometimes no, we make all the calculations ourselves. हम लोग सारा जो जोड़ना घटाना खुद कर लेते. Okay, if I do this, then what if this happens? Then maybe this will happen. And if this happens, then I think it's not a good idea. Let's not do it. Finish. कई बार ऐसा हम लोग सोचते हैं और फिर वो बात कभी हो ही नहीं पाती. Lord says obey. If it says do this, then do this. So we need that amount of faith to remember what the Lord has said, to obey what he has said in the context of the church and the missions, and the Lord says over here to repent. As we analyze ourselves, as we introspect ourselves, wherever we are lacking, Jesus says to repent. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहां कहीं भी कमी है या जहां कहीं भी हम मार्ग से भटक गए हैं, उसके लिए हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से भी और कलीसिया के रूप में भी. Not just as an individual, but as a church also. What if we fail to take notice of all this, and what if we fail to recognize the need for correction? अगर हम इन सब बातों पे ध्यान ना दें और इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दें, we overlook and we don't make any correction, हम कुछ ना करें, then what is going to happen? Let's see what Jesus said. Jesus said, if you do not wake up, I will come like a thief
and you will not know at what time I will come to you. इसको हिंदी में पढ़ दीजिए, इतना वाला हिस्सा. यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा. And it is a very familiar phrase, an idea in the Bible, given by Jesus himself. ये एक जाना पहचाना सा तरीका है जिसमें यीशु मसीह बात करते हैं that he will come like a thief. So we don't know. When we think that everything is going well, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब आराम से हैं, अभी कुछ नहीं होगा. The Lord says, I can come like a thief. Nobody knows the day or time or the hour. And when the Lord comes back to his own church, what is he going to find? That's the question. जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया में लौट के कभी भी आ सकते हैं, अगर कल आ गए, आज आ गए, ठीक है, अगर आज यीशु मसीह कलीसिया में गए तो देखेंगे वहाँ ताला है और लोग घर पे बैठे हुए जूम पे हैं. What is the Lord going to find? Just an example. So whenever the Lord comes, what is he going to find? क्या मिलेगा प्रभु यीशु मसीह को देखने को? And so every day as a church has to be a day with full homework done. No homework should ever be left pending. जो भी प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के रूप में हमें करने को कहा है, वो रोज का रोज हमारा काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए. If the Lord comes and we are lacking, then after knowing everything, after being instructed about everything, after all the time that is given, what excuse are we going to give? इतना समय प्रभु ने हमें दिया है, सारी बातें हमें समझाई है, सारे स्रोते हमें दिए, सारे अनुसंधान हमें दिए हैं, और फिर भी अगर हम पीछे हैं, भटके हुए हैं, तो हम क्या बहाना बनाएंगे? There is no excuse we can make. Now, what if we take the advice and make the corrections? यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात को मान लेते हैं और जैसा हमें करना चाहिए वैसा करेंगे, तब क्या होगा? And verse 4 is a little bit positive. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. There's a little bit of encouragement over here. कि अभी भी ऐसे लोग हैं कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते हैं. अभी भी ऐसे लोग हैं और हर कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं. Let us never think that any church can be so dead that there's nothing. There'll always be one person, two people, someone will be there, who are alive, but probably they are also helpless. So here the Lord is saying, you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes, and they will walk with me dressed in white, for they are worthy. So of course these are all symbolic languages, that he will make us dress in white. He will, and the white dress symbolizes purity and holiness. And then walking with Jesus, there is no parallel to give an example. I mean, walking with Jesus, you can just visualize, how it will be to walk with Jesus. There is no example to give for that. लेकिन जो सफेद वस्त्र की बात हो रही है, उसका मतलब है कि पवित्रता, कि यीशु मसीह हमें अपनी पवित्रता से ढांक लेंगे, हमें देंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज चलना का कोई उदाहरण नहीं है, उसके लिए कोई उदाहरण नहीं दे सकते. एंड ही विल एक्नॉलेज अस बिफोर द फादर. दैट्स व्हाट ही सेज. Verse 5, he who overcomes like them be dressed in white. I will never blot out the name from the book of life, but acknowledge his name before my Father. कि जो लोग मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जैसा मैंने कहा है, तो उनको मैं श्वेत वस्त्रों में ढांक दूंगा. वो मेरे साथ साथ चलेंगे और उनका नाम जो जीवन की पुस्तक है उससे कभी हटाया नहीं जाएगा, और उनको मैं परमेश्वर पिता के सामने उनका अंगीकार करूंगा. I will acknowledge their name before my heavenly Father.
you know, when we think of such a letter, or any letter for that instance, so far that we have seen, we must understand that yes, the letter is written to the church. जब हम ऐसी पत्री या ऐसे पहले जो लिखी गई या इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जब इन पत्रियों को, चिट्ठियों को देखते हैं, तो ये बात सही है कि चिट्ठी कलीसिया को लिखी गई है, बट द क्वेश्चन इज हु मेक्स अप द चर्च। सवाल ये उठता है कि चर्च बनता कैसे है, कौन है चर्च में? एंड दैट इज यू एंड मी, दैट इज नो वन एल्स, इट इज यू एंड मी. So when the letter is written to any church, and we understand that whatever is written in the word of God is timeless, it is for people of all times. So what is written to Sardis is written to GBC also. All the letters are written to all the churches. सारी जो चिट्ठियां हैं, सारी पत्रियां हैं, सबके लिए लिखी गई हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो यूएस में हो, यूरोप में हो, चाइना में, नेपाल में, it's written to everyone, सबके लिए लिखी गई हैं. And a church is made up of members like you and me. And so whatever is being said to the church is actually being said to you and me. ये आपके लिए और हमारे लिए इन बातों को रखा गया है for us to introspect our lives, because it is we individuals who make up the church. कि हम अपने आप को जांचने पाएं, क्योंकि हम जो अलग अलग लोग हैं, हम लोग मिला के ही कलीसिया बनते हैं. एनी चर्च, कोई भी चर्च हो. And so if it says, if Jesus says the church is dead, it means the people who are coming in there, they are dead. अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कलीसिया है वो मृत है, वो मरी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो लोग वहां पे आ रहे हैं वो मरे हुए हैं. Because the church, if you see, I mean, from a worldly perspective, it's just a building that is dead anyways. It's an inanimate. अगर हम दुनिया की नजर से देखें तो चर्च तो एक बिल्डिंग है केवल, और वो तो ईंटें पत्थरों से बनी, वो तो वैसे भी मृत है, उसमें कोई जान नहीं है. द लाइफ इज ब्रॉट बाय अस द मेंबर्स. उसमें जीवन हम लोग लेके आते हैं. जो चर्च का कार्य, जो मिशंस है, वो हम लोग लेके आते हैं. सो आई थिंक it's a wonderful letter for this week for us to introspect, कि हम अपने आप को व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया के रूप में भी हम अपने आप को जांच सकते हैं, सोच सकते हैं ना, और वी कैन सी वेयर वी स्टैंड, कि हम कहाँ पे अपने आप को पाते हैं. एंड वट एवर इज सेड अबाउट हियर फॉर द चर्च इज एक्चुअली सेड फॉर अस. जो भी कलीसिया के लिए कहा गया है, सो इट्स नॉट अ लेटर एड्रेस टू सार्डिस. आई मीन इट्स एक्चुअली एड्रेस टू अस एज इंडिविजुअल, टू मी. तो मुझे ये कहा गया है, तो मुझे अपने आप को जांचना है कि जो कुछ भी यहाँ कहा गया है वो वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं. डू आई लुक वेरी बबली फ्रॉम द आउटसाइड? डू आई लुक वेरी रिलीजियस? डू आई साउंड वेरी रिलीजियस फ्रॉम आउटसाइड? Everybody thinks I am doing fine, but what am I from inside spiritually is the question. कि बाहर से देखने में मैं एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, बाहर से मैं बिल्कुल ठीक दिखता हूँ, मैं स्वस्थ दिखता हूँ, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, मैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से मैं क्या हूँ? दिस इज द क्वेश्चन दैट जीसस इज आस्किंग, कि अंदर से मैं क्या हूँ, इसको जांचने की आवश्यकता है. सो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीक वी विल हैव समथिंग टू थिंक अबाउट. एंड I was thinking in our own context, and I've said this before, that as a church, we are a praying church, we are a worshiping church, we are an alive church. हम लोग जीवित हैं, हम लोग आराधना में शामिल होते हैं, हम लोग प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं. And let's do this in an increasing manner. इसको हम और बढ़ाएं. इस साल में अपनी बाइबल स्टडी को, अपने जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, not to show anyone, because we can't show it to anyone. We don't have to show it to anyone. किसी को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर्स को दिखाने के लिए नहीं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, but this is what the Lord has asked us to do, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमसे कहा है. And one thing
if I can say today, is that we have to increase our participation in missions. ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि हमें बैठ के सोचना है, अपने सुझाव देने हैं कि मिशंस में, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचने में हम खुद कैसे हिस्सा लें. गिविंग मनी इज डिफरेंट. पैसा देना अलग बात है. We all give and then we give it to other missions, and that is okay. The Lord doesn't want our money. Lord can arrange money, but the Lord wants our participation. हम कैसे छोटे से छोटे तरीके में कैसे हम प्रभु के वचन को आगे बढ़ाने में, लोगों को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से. I think that is something in this year we should really focus upon. Personally, because first it has to be personally, only then it can it can be channelized through the church. कि व्यक्तिगत रूप से मुझ में कोई ऐसी इच्छा है, whatever I can do. You don't have to be a great preacher, a great singer, a public. No, it doesn't have to be that way. आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रचारक हो, आप बहुत अच्छा गाने वाले हो. Whatever you can, कुछ भी आप कर सकते हैं. कोई ऐसा काम जिसके द्वारा कलीसिया जो है वो परमेश्वर के वचन को औरों तक पहुंचाने में सहायता मिलने पाए. So let's think about that, and let us not be found wanting in what the Lord has asked us. हम कहीं भी जो प्रभु ने हमसे कहा है उस पर अपने आप को कमी ना महसूस करें. And let this be a warning to us. जो सार्डिस को लिखा गया है वो हर कलीसिया को चेतावनी है, इंक्लूडिंग ग्रेस बाइबल चर्च. जो सार्डिस में चेतावनी दी गई है, जो दशा है, वो हर कलीसिया को दी गई है और हम भी उससे अलग नहीं हैं. So let us pray that we will always be a living church and a live church. We thank God for all that the Lord has helped us with. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से हम सबकी सहायता करी है और लॉकडाउन के दौरान भी और हर तरीके से प्रभु ने हमें साथ में रखा है, आशीषित किया है. We are grateful to God for that, and let's do this more and more in an increasing manner. प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इसको हम और भी करते जाएं और बढ़ते हुए तरीके से करते जाएं. Let's pray. Father, we thank you that you have spoken to the church in such a direct and clear manner. प्रभु जी, आपने सारी कलीसियाओं से बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने सारी कलीसियाओं से बातचीत करी है परमेश्वर इन पत्रियों के द्वारा. Lord, today's letter is sad. आज की जो पत्री है प्रभु जी वो दुख से भरी हुई है, because this church was dead. In your observation, this church was dead. प्रभु जी, आपकी नज़र में ये कलीसिया जो थी वो मृत थी. And Lord, when we read this, we want to think about our own lives and about our own church. प्रभु जी, हम जब उसको पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, उसको जांचते हैं परमेश्वर, और हमारी जो कलीसिया है हम उसके बारे में भी प्रभु जी जांचना चाहते हैं. Help us, Lord, not to be complacent. Help us not to just think it's okay. प्रभु जी, हम आराम तलब ना बने, हम ये ना सोचें कि अरे सब ठीक है, सब चलता है. But Lord, help us to make a conscious effort to do all that you've asked us to. प्रभु जी, जो कुछ भी आपने हमसे करने को कहा है उसको हम करें, as an individual and also as a church. एक व्यक्ति के रूप में भी परमेश्वर और कलीसिया के रूप में भी. Thank you, Lord, for the wonderful church congregation that you have given to us. प्रभु जी, जो आपने हमें कलीसिया दी है हम उसका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord, for the so many blessings we have got through the church. प्रभु जी, हमारी कलीसिया के द्वारा आपने हमें इतना आशीषित किया है, हम धन्यवाद करते हैं. Lord, the wonderful word of God that we have learned through the church, the prayer meetings, the Bible studies, the fellowship that we have got through the church, we thank you, Lord. प्रभु जी, जो हमने इतने अनेक संदेश सुने हैं वचन में से आत्मा को तृप्त करने वाले, जो हमने बाइबल स्टडीज अटेंड करी हैं, जो प्रार्थना सभा अटेंड करी हैं प्रभु जी, और हर जो हमारे सहभागिता होती है प्रभु जी, इन सब से हमको बहुत आशीष मिली है प्रभु जी. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.
Lord, we pray that you'll help us to be alive from inside and be spiritually, Lord, you'll always help us to be active. प्रभु जी आत्मिक रूप से हमेशा प्रभु जी हम जीवित रहेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसे करते रहेंगे. In Jesus precious name we ask. Amen. In